To this lecture on gravitation. Today we will discuss variation of acceleration due to gravity with due to shape of earth. हम लोगों ने पढ़ा है variation of acceleration due to gravity with altitude and with depth, जो हमने कल देखा. हमने देखा कि जब हम बॉडी को लेंगे above the surface of earth, what happens? Acceleration due to gravity decreases. Similarly, when we go deep inside the earth, acceleration due to gravity decreases. Now, the third one is variation of acceleration due to gravity due to shape of earth. जब हम height और depth में पढ़ रहे थे variation of G, उस वक्त हम assume करते थे कि हमारा earth जो है वो spherical है. मगर actually our earth is not spherical. Our earth is elliptical, egg shape. हमारा जो earth है that is elliptical. Our earth is elliptical. This is my earth. This earth is elliptical in shape. This is its equator. And these are the poles. This is north pole and this is south pole. हमारा earth जो है that is not elliptical. That is elliptical. That is not spherical. जो हमारा earth है इसकी actual shape जो है वो है elliptical. Spherical नहीं है. लिहाजा जो ये earth है, for example, this is the center of earth. जो ये line है, this is equator. This is equator. And this is the axis of earth. Axis of earth. Earth जो है ये हमेशा rotate करता है about a line which joins north and south pole. This is called the polar axis of earth. Now see here. अगर हम ये मानेंगे ये center of earth है, तो ये distance जो है, this is equatorial radius of earth. What is this? Equatorial radius of earth. ठीक है ना? इसको हम डिनोट करेंगे RE से. और जो ये है, this is polar radius of earth. Distance between center of earth and north pole, or distance between center of earth and south pole. इसको हम कहते हैं polar radius of earth. ये कौन सी रेडियस है? Equatorial radius of earth. अब डायग्राम देखो. मेरा जो अर्थ है, ये फ्लैट है. At the poles ये फ्लैट है. ठीक है ना? फ्लैट है. मगर at the equator ये bulging out है. It is bulging out. It is bulging out है ना? Curved type का है ये. Now, जो आपका equatorial radius है, that is greater than polar radius. नजर मारो. Equatorial radius is greater than polar radius by 21 kilometers. कितने किलोमीटर्स? 21 kilometers. आप ऐसे बोलेंगे. चूंकि हमारा जो अर्थ है, that is not spherical, that is elliptical, egg shaped. The earth is flat at the poles and bulging out at the equator. Now, the equatorial radius radius of earth, this is earth, radius of earth when it is at the equator, ठीक है ना, is greater than the polar radius by how much? 21 kilometers. ठीक है ना? Suppose जो ये equator है, equator पे जो acceleration due to gravity का value है, that is GE. ठीक है? पोल्स पे ये नॉर्थ पोल है, पोल्स पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है वो है जीपी. वो क्या है? जीपी. जीपी को मैं मानूंगा दिस इज वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, एट नॉर्थ पोल और एट साउथ पोल. दिस इज जीई इज व्हाट? वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर. मैं ऐसे लिखूंगा RE इज इक्वल टू इक्वेटोरियल रेडियस. Equatorial radius of earth. RP is equal to polar radius of earth. Polar radius of earth. GE is equal to acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity at the equator. GE जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर. जीपी जो है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स. ठीक है ना? आपको पता है जो ये RE है ये है ग्रेटर देन RP बाय 21 किलोमीटर्स. जो आपकी इक्वेटोरियल रेडियस है वो ज्यादा है पोलर रेडियस से. कितना? 21 किलोमीटर. ठीक है ना?
सी, आपको पता है वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ किसके बराबर होता है? जी होता है बराबर GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे किसी भी पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो हमने पढ़ा है, वो किसके बराबर होता है? G इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। G जो है ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ाया आपको। M जो है, M है मास ऑफ अर्थ, और R जो है वो है रेडियस ऑफ अर्थ। अब पहले हम GE निकालेंगे। GE जब होगा उस वक्त R किसके बराबर होगा? R किसके बराबर होगा? यार जब हम G के बदले लिखेंगे GE, तो R के बदले क्या लिखेंगे? RE, क्योंकि GE है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर GE इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर। वी विल कॉल दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। GE is equal to GM divided by RE square. G is acceleration due to gravity at the equator and RE is equatorial radius of Earth. Similarly, poles पे लिखेंगे GP is equal to GM divided by RP square. This is acceleration due to gravity at the poles. This is acceleration due to gravity at the equator. इनको मैंने इस इक्वेशन से निकाला, क्योंकि ये इक्वेशन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, ठीक है। We will call this equation number second. अब हम यहां पर क्या काम करेंगे? यहां पर बच्चों हम क्या काम करेंगे? इस फर्स्ट को हम डिवाइड करेंगे सेकंड से, ठीक है ना। Let us divide first by second. हम देखेंगे GE ज्यादा है कि GP ज्यादा है, इन दो में से कौन सा ज्यादा है, वो हम कैसे निकालेंगे? हम इस इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड के साथ क्या करेंगे? डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड वी गेट, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकंड आपको क्या निकलेगा? आपको निकलेगा GE डिवाइडेड बाय GP, GE डिवाइडेड बाय GP इज इक्वल टू शाबाश GE का वैल्यू क्या है? शाबाश GM डिवाइडेड बाय शाबाश RE स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय शाबाश, होल डिवाइडेड बाय क्या है? शाबाश फटाफट बताओ। GM डिवाइडेड बाय RP स्क्वायर। इसको उल्टा पलट हो जाएगा, RP स्क्वायर जो है ये ऊपर आ जाएगा, GM जो है वो नीचे आ जाएगा। तो बच्चों आपको ये निकला यहां पर GE डिवाइडेड बाय GP इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर into RP square divided by GM, RP square divided by GM, ठीक है बच्चा। इसको उल्टा पलट हो गया ना, तो यहां पर आपका GM कैंसिल हो गया, आपका निकलेगा बच्चों GE डिवाइडेड बाय GP इज इक्वल टू RP स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, RP स्क्वायर डिवाइडेड बाय RE स्क्वायर, ठीक है बेटा। नाउ ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है। मैं इसको ऐसे लिखूंगा बच्चों GE डिवाइडेड बाय GP इज इक्वल टू RP डिवाइडेड बाय RE का होल स्क्वायर। GE डिवाइडेड बाय GP इज इक्वल टू RP डिवाइडेड बाय RE का होल स्क्वायर। यहां देखो, चूंकि RP जो है, चूंकि आपका RP जो है वो है लेस देन RE, RP जो है वो है लेस देन RP, चूंकि आपको पता है पोलर रेडियस इज लेस देन इक्वेटोरियल रेडियस। RE कौन सी रेडियस है? इक्वेटोरियल रेडियस। RP कौन सी रेडियस है? पोलर रेडियस। फिगर की तरफ देखो, पोलर रेडियस जो है वो इक्वेटोरियल रेडियस से बहुत कम है, ठीक है ना। नाउ यहां पर हमें RP डिवाइडेड बाय RE, ठीक है। देखो यहां पर इसको मैं डिवाइड करूंगा RE से, तो यहां बनेगा ये RP डिवाइडेड बाय RE इज लेस देन RE डिवाइडेड बाय RE। ये RE कैंसिल हो गया, तो आपको निकला RP डिवाइडेड बाय RE इज लेस देन 1। निकला ना बेटा? बेटा आपको ये है RP इज लेस देन RE, ठीक है। इसको डिवाइड किया RE से, तो ये बन गया RP डिवाइडेड बाय RE इज लेस देन RE डिवाइडेड बाय RE। RE डिवाइडेड बाय RE है 1, ठीक है। तो बच्चों आपको निकला RP बाय RE इज लेस देन 1, ठीक है। अगर हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे
ये बनेगा ना ऐसे, आर पी डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर इज लेस देन 1 स्क्वायर। कोई फर्क है? इज लेस देन 1 स्क्वायर। ये बनेगा ना ऐसे, आर पी डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। आर ई डिवाइडेड बाय आर पी का होल स्क्वायर इज लेस देन 1, क्योंकि 1 स्क्वायर हो गया 1 ही। मगर आर पी डिवाइडेड बाय आर ई स्क्वायर किसके बराबर है? जीई डिवाइडेड बाय जीपी। यहां देखो, आर पी डिवाइडेड बाय आर ई का होल स्क्वायर किसके बराबर है बेटा? जीई डिवाइडेड बाय जीपी। इसके बदले वही लिखेंगे, दिस एम्प्लाइज जीई डिवाइडेड बाय जीपी इज लेस देन 1। दिस एम्प्लाइज जीई इज लेस देन जीपी। तो आपको क्या निकला? आपको निकला बेटा जीई इज लेस देन जीपी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज लेस एट इक्वेटर, मोर एट पोल्स, क्योंकि जीई इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। ये निकला लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स, ठीक है ना। तो आपका जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो लेस है एज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स, एट द पोल्स। इसका मतलब है आपका वेट जो होगा वो इक्वेटर पे कम होगा और पोल पे क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब है when we move from equator to poles, acceleration due to gravity goes on increasing. When we move from poles to equator, acceleration due to gravity goes on decreasing. Why? Because acceleration due to gravity is more at poles and less at equator. Why it is more at poles? Because polar radius is small as compared to what? Equatorial radius. Because polar radius is small as compared to equatorial radius. Smaller the radius, smaller the radius, greater will be the acceleration due to gravity. लिहाजा जब आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीज होगा, लिहाजा आपका वेट इंक्रीज होगा। जब आप पोल्स से आएंगे वापस इक्वेटर की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा और आपका वेट जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन। Gravity with the shape of Earth, let us first define latitude at a place. आपने ज्योग्राफिया में लिखा होगा latitude at a place. In geography you have read about latitudes and longitudes. अब आप यहां पर मैं डिफाइन करूंगा ये latitude क्या होता है. What do you understand by the latitude at a place? You have read it in your 9th class geography or 10th class geography. I know that. Suppose हमारा अर्थ जो है, सपोज इट इज स्फेरिकल, सपोज हमारा अर्थ जो है ये स्फेरिकल है। देखो भाई हमारा अर्थ क्या है? स्फेरिकल। ये है नॉर्थ पोल, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये है अर्थ का साउथ पोल, और जो ये लाइन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। क्योंकि अर्थ हमेशा इसी एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है। अर्थ जो है वो हमेशा घूमता है किस एक्सिस के, किस लाइन के इर्द गिर्द? जो लाइन अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती होगी उसको कहते हैं हम पोलर एक्सिस और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। देखो भाई सपोज ये अर्थ का सेंटर है, जो भी लाइन ये लाइन अर्थ के सेंटर में पास होगी और अर्थ को दो हिस्सों में तकसीम करती है, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या कहते हैं? इक्वेटर। और यहां पर मैं एक प्लेन ड्रा करूंगा, ये प्लेन एक हिस्सा ये ऐसे है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। व्हाट इज दिस कॉल्ड शाबाश? व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन। भाई सुनो, आपके पास एक बॉल है, टेनिस बॉल, उसको दरमियान में काटो, है ना, टेनिस बॉल चटोन दरमियानस मंज अकेंत रोजास गोल्यू तथ पेट रोजास गोल्यू, दैट्स कॉल्ड प्लेन, दैट्स द प्लेन। इसी तरह हमारा अर्थ जो है हम यहां एज्यूम करेंगे अर्थ हमारा जो है वो बॉल शेप्ड है, ठीक है ना, बॉल शेप्ड है, इसको दरमियान में काटेंगे, सो गोल्यू रोज ना था, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इक्वेटोरियल प्लेन। इक्वेटोरियल प्लेन जैसे हेमिस्फीयर रहा यहां पर, रहा ना यहां पर हाफ द स्फीयर, ठीक है ना, तो ये है इक्वेटोरियल प्लेन। अब मुझे यहां पर क्या डिफाइन करना है? लैटिट्यूड एट ए प्लेस। लैटिट्यूड एट ए प्लेस। देखो बेटा सपोज हमारे अर्थ के सरफेस पे यहां पर एक जगह है, इस जगह का नाम मैं रखूंगा P। व्हाट इज P? दिस P इज ए प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ।
देखना है इस प्लेस का क्या लैटिट्यूड होगा, इस प्लेस का लैटिट्यूड क्या होगा। P जो है इट इज एनी प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो यहां पर यह लाइन एक है, इस लाइन ने ज्वाइन किया इस प्लेस को विद व्हाट, सेंटर ऑफ अर्थ। ये जो लाइन है OP, इसने ज्वाइन किया है प्लेस P को विद व्हाट, विद सेंटर ऑफ अर्थ। शाबाश, विद सेंटर ऑफ अर्थ। तब जो एंगल ये लाइन इक्वेटर के साथ बनाएगी, जो एंगल ये लाइन किसके साथ बनाएगी, इक्वेटर के साथ। कौन सी लाइन, जिसने प्लेस को ज्वाइन किया किसके साथ, अर्थ के सेंटर के साथ। जो एंगल ये लाइन किसके साथ बनाएगी, इक्वेटर के साथ बनाएगी या इक्वेटोरियल प्लेन के साथ बनाएगी, उसी एंगल को कहते हैं हम लैटिट्यूड एट ए प्लेस। उसी एंगल को हम कहते हैं लैटिट्यूड एट ए प्लेस। Therefore, for place P, what is the latitude at place? That is angle POE. वो किससे मैंने डिनोट किया, लैम्डा से। किससे डिनोट किया, लैम्डा से। This is called lambda. तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं, the latitude of a place is defined as the angle which the line joining the place with the center of earth makes with the equator. Latitude of a place is the angle, कौन सा एंगल, which the line joining the place with the center of earth makes with the equator। ठीक है ना। तो यहां पर जो प्लेस P है, इस प्लेस P का जो लैटिट्यूड होगा that will be equal to angle POE, that will be equal to angle POE, that is equal to lambda, that is equal to lambda. So what is this lambda? Lambda is the latitude of place P, because place P is making an angle. What angle? POE with the equator. The line joining the place P with the center of earth, ठीक है ना, makes an angle POE with the equatorial plane. Therefore this angle is called as latitude of place P. Now अगर ये place P में उठाऊंगा, इसको यहां लाऊंगा इक्वेटर पे। यहां देखो, इस पॉइंट P को लाऊंगा मैं इक्वेटर पे। जो ये लाइन है, ये लाइन ये कोइंसाइड करेगी इक्वेटर के साथ, तो आपका जो लैम्डा होगा ये कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री। और यहां देखो ना, अगर इस पॉइंट P को उठाएंगे, कहां रखेंगे, इक्वेटर पे, ठीक है ना। तो ये लाइन जो है PO लाइन, ये किसके साथ कोइंसाइड करेगी, OE के साथ। तो आपका एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो हम लिखेंगे एट इक्वेटर जो लैटिट्यूड लैम्डा होता है वो होता है 0 डिग्री। वो किसके बराबर होता है, 0 डिग्री। अगर ये पॉइंट P को उठाएंगे हम पोल पे लेंगे, नॉर्थ पोल पे लेंगे, तो आपकी OP लाइन जो है वो किसके साथ कोइंसाइड करेगी, ON के साथ। तब ये एंगल कितना होगा, शाबाश, 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे एट पोल्स जो हमारा लैम्डा होता है वो होता है 90 डिग्री। इक्वेटर पे जो लैटिट्यूड होता है वो होता है 0 डिग्री, और आपका जो पोल्स होते हैं, पोल्स पे आपका जो लैटिट्यूड होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। वो होता है 90 डिग्री, पोल्स पे होता है 90 डिग्री। ठीक है, 2 मिनट हम रेस्ट करेंगे। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। आपको पता है जो हमारा अर्थ है वो रेस्ट में नहीं है। दैट अर्थ इज कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग अराउंड द सन अबाउट इट्स पोलर एक्सिस। ठीक है ना, अर्थ जो है ये कंटिन्यूअसली रोटेट करता है अराउंड द सन अबाउट इट्स पोलर एक्सिस। देखो, सपोज हम पहले एज्यूम करेंगे कि जो हमारा अर्थ है दैट इज अ परफेक्ट स्फीयर। बातें नहीं, बस खाली सोचो। यहां पर हमारा अर्थ जो है इट्स अ परफेक्ट स्फीयर हैविंग सेंटर O, इसका सेंटर O है, दिस इज इट्स सेंटर O एंड रेडियस R, having center O and radius R। देखो बच्चों, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ये अर्थ की जो है पोलर एक्सिस है, ये अर्थ की पोलर एक्सिस है। दिस इज द पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ, दिस इज द पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ। यानी हम कहेंगे पोलर एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, और सीधे आप कहोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। यहां देखो बेटा, सपोज मेरा अर्थ जो है ये है एक परफेक्ट स्फीयर,
ठीक है ना, हैविंग सेंटर O, और इसकी जो रेडियस है, सपोज इसकी रेडियस में मानूंगा R। रेडियस क्या है? R। ये मेरा अर्थ जो है ये हमेशा रोटेट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम ऐसे, फ्रॉम ये ईस्ट है ये वेस्ट है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू, नॉट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अर्थ ऑलवेज रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट देखो ये वेस्ट है ये ईस्ट है, अर्थ ऐसे रोटेट होता है, ऐसे रोटेट होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। दिस अर्थ ऑलवेज रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, with angular velocity omega about its polar axis. That means line which contains which joins north pole with the south pole. मैंने assume किया कि जो मेरा अर्थ है ये एक perfect sphere है. Suppose this earth is rotating about its polar axis from west to east with a uniform angular velocity omega. आपको पता है जैसे ही एक बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है, पढ़ाया मैंने, जब एक बॉडी को रोटेशनल मोशन होती है उस बॉडी का जो भी पार्टिकल होता है वो डिस्क्राइब करता है हॉरिजॉन्टल सर्कल। जब मैंने रिजिड बॉडी पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था आपको रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। मैंने बोला था कि अगर एक रिजिड बॉडी रोटेट कर रही होगी अबाउट सम एक्सेस, तो उस वक्त जो रिजिड बॉडी में हर एक पार्टिकल जो होता है वो डिस्क्राइब करता है एक हॉरिजॉन्टल सर्कल, जिस सर्कल का सेंटर होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। इसी तरह जब ये अर्थ रोटेट करेगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, उसी वक्त क्या काम होगा, जो ये अर्थ है इस अर्थ पे जो भी पार्टिकल होगा वो पार्टिकल डिस्क्राइब करेगा एक हॉरिजॉन्टल सर्कल। वो पार्टिकल डिस्क्राइब करेगा क्या? हॉरिजॉन्टल सर्कल। जब भी अर्थ रोटेट करेगा तो एवरी पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ describes a horizontal circle or moves in a horizontal circle with same angular velocity as that of the earth। जैसे हमारा अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, इस वक्त रोटेट कर रहा है, तो इस अर्थ के सरफेस पे जो भी पार्टिकल होगा, चूंकि अर्थ को रोटेशनल मोशन होगी, लिहाजा जो भी पार्टिकल होगा वो मूव कर रहा होगा किस सर्कल में? हॉरिजॉन्टल सर्कल में, विद सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ अर्थ। जितनी अर्थ को एंगुलर वेलोसिटी होगी उतनी उस पार्टिकल को होगी जब वो पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा। उन तमाम सर्कल्स का जो सेंटर है वो सेंटर लाई करेगा ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सपोज हम एक पार्टिकल लेंगे, उन तमाम पार्टिकल्स पे हम एक पार्टिकल लेंगे विच इज प्रेजेंट एट पॉइंट P, विच इज लाइंग एट पॉइंट P। सपोज जो ये अर्थ में बड़े सारे पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स में एक पार्टिकल लेंगे हम जिसका मास m होगा, स्मॉल m होगा, जिसका मास स्मॉल m होगा, जो डिस्क्राइब कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल सर्कल, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसका सेंटर C होगा, और उस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम स्मॉल r लिखेंगे। क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये किस पॉइंट पे है? P पे, ठीक है ना। सपोज इस प्लेस P का जो लैटिट्यूड होगा, दैट लैटिट्यूड इज लैम्डा, हम ऐसे लिखेंगे। Let us consider one particle of mass m, ठीक है ना, lying at point P, ठीक है ना, lying at place P on the surface of earth, whose latitude is what? लैम्डा। इस प्लेस P का जो लैटिट्यूड है वो कितना है? लैम्डा। लैटिट्यूड है एंगल जो लाइन, जो प्लेस को सेंटर ऑफ अर्थ के साथ लाइन ज्वाइन करती है, वही लाइन बनाती है इक्वेटर के साथ। नाउ दिस पार्टिकल एट पॉइंट P moves in a horizontal circle having center O and radius small r, ठीक है। नाउ ये एंगल लैम्डा है, ये लाइन, ये देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लिहाजा ये एंगल भी लैम्डा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, इनको ये ट्रांसवर्सल कट करता है, ये ट्रांसवर्सल। जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करता है तो उस वक्त पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर। तो ये एंगल भी कितना होगा? लैम्डा।
हम देखेंगे ये कितना होगा, ये स्मॉल आर कितना होगा। देखो ओपी जो है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, ओपी जो है ये है रेडियस ऑफ अर्थ। चूंकि देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। हम निकालेंगे पहले ये स्मॉल आर किसके बराबर है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो इस सर्कल की रेडियस है ये किसके बराबर है। देखो बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OCP, इन ट्रायंगल OCP, CP है बेस डिवाइडेड बाय OP है हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज वो होगा cos लैम्डा, cos लैम्डा। बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है cos, एंगल कितना है बच्चा, एंगल कितना है लैम्डा। देखो CP जो आपका है वो स्मॉल r है, OP जो है वो कैपिटल R है, यानी स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R इज इक्वल टू cos लैम्डा। यानी स्मॉल r जो आपका है उसको मल्टीप्लाई यहां करो, वो निकला आपको कैपिटल R क्रॉस लैम्डा। इसको रखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने आपको बोला कि जब यह अर्थ रोटेशनल मोशन में होगा, इस अर्थ पे जो भी पार्टिकल होगा वो मूव कर रहा होगा एक सर्कल में, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, जिस विद सेम एंगुलर वेलोसिटी एज दैट ऑफ अर्थ। और उन तमाम सर्कल्स का सेंटर जो होगा, सेंटर जो होंगे दैट विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने एक उन तमाम पार्टिकल्स में एक पार्टिकल लिया जिसका मास क्या है, जिसका मास क्या है m, जो डिस्क्राइब करता है एक सर्कल जिसका सेंटर C है और रेडियस क्या है स्मॉल r, एंड दैट स्मॉल r इज गिवन बाय r इज इक्वल टू cos लैम्डा। नाउ इस पार्टिकल जो यहां पॉइंट P पे है, इसकी मास क्या है m, इसकी मास क्या है m। यहां देखो इस पार्टिकल की जो पार्टिकल आपको पॉइंट P पे है इसकी मास क्या है स्मॉल m। इस पार्टिकल पे बड़े सारे फोर्स एक्ट होंगे। देखो एक फोर्स इस पे एक्ट होगा वेट ऑफ पार्टिकल, वेट ऑफ पार्टिकल दैट विल बी इक्वल टू mg। और जो वेट होता है वो हमेशा होता है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। लिहाजा इस पार्टिकल का पॉइंट P पे जो वेट होगा इसका एक्चुअल वेट, दैट एक्चुअल वेट विल बी इक्वल टू mg एंड दैट वेट विल एक्ट अलोंग द लाइन PO, अलोंग द लाइन PO। क्योंकि PO लाइन जो है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। हम लिखेंगे various forces acting on the particle at point P, various forces acting on the particle at point P are number one देखो क्या होता है weight of particle। यहां देखो आपको पता है वेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेट ऑफ पार्टिकल होता है mg, ठीक है ना। तो पहला चूंकि वेट जो है वो है फोर्स, मैंने आपको बताया व्हाट इज वेट, इट इज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट। चूंकि यहां पर अर्थ इसको ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा एंड दैट ग्रेविटेशनल पुल इज वेट, वो किसके बराबर है mg। वो वेट कहां डायरेक्ट होगा, दैट विल एक्ट अलोंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अलोंग व्हाट, अलोंग PO। weight of particle mg acting towards the center of earth, acting towards the center of earth along PO, along PO। यहां देखो weight of particle mg, यहां पर जो पार्टिकल है इसकी मास m है, यहां पर जो अर्थ की सरफेस पे जो पार्टिकल है उसकी मास क्या है m। इस पार्टिकल को अर्थ जो है अट्रैक्ट हो जाएगा या पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विद एन एक्सेलरेशन g, देयरफॉर इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी और दैट विल बी वेट। वो वेट किसके बराबर है mg। देखो यहां दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो मेरी तरफ यहां देखो, जैसे पार्टिकल मूव करता है एक सर्कल में, इस पार्टिकल को सर्कल में एक फोर्स मूव करा रहा है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे एक पार्टिकल यहां सर्कल में मूव करेगा, जब ये पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, इस पार्टिकल को एक फोर्स सर्कल में मूव कराएगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो होता है वो एक्ट होता है अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, पढ़ाया सेंट्रीपिटल फोर्स। ये देखो
ये पार्टिकल जब सर्कल में मूव करेगा, इस पार्टिकल पे एक फोर्स एक्ट होगा, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो होता है वो एक्ट होता है along that acts along the radius directed towards the center. As per Newton's second law of motion, इस फोर्स को इक्वल एंड अपोजिट दूसरा फोर्स होगा, जो फोर्स, that force will also act along the radius, मगर that will be directed away from the center. ये फोर्स है, इसको रखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, this is towards the center, और यहां एक और फोर्स एक्ट होगा, that will be away from that will be along the radius and away from the center, and that force is called centrifugal force. जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे, इस पार्टिकल पे दो फोर्सेस एक्ट होंगे। एक होगा वेट ऑफ पार्टिकल एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मींस along PO, then that weight of particle is equal to mg। मैंने ये भी कहा इस पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए एक फोर्स होगा, and that force is called centripetal force, and that force is always directed towards the center and acts along the radius। Now इसका एक रिएक्शन फोर्स होगा, that force is called as centrifugal force। This is the reaction force, this is equal and opposite to centripetal force। centripetal force along the radius towards the center, लेकिन centripetal force जो है that acts along the radius but directed, यहां देखो, directed away from the center। और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो होता है Fc इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर। कैसे होता है, यहां देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है वो होता है mv स्क्वायर बाय r। आपको पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन v होता है r ओमेगा। यहां v का वैल्यू देंगे तो ये बनेगा Fc इज इक्वल टू m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। ये r और ये r कट गया तो आपको Fc निकलेगा m r ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है इट इज इक्वल एंड अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा जितना सेंट्रीपिटल फोर्स का होगा। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड है m r ओमेगा स्क्वायर, जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। बट ये होगा अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट मींस this centrifugal force, suppose this acts along PA, ये जो है ना it acts along PA। तो दूसरा फोर्स जो पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF, उसको मैंने नाम रखा FCF इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर एक्टिंग along PA and away from the center। Acting along PA, that means acting along this radius but away from center। देखो यहां पर ये रेडियस जो है इसकी डायरेक्शन में यहां से बढ़ाऊंगा। यहां देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर समझ नहीं आएगा आप लोगों को। ये यहां पर पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट P है यहां पर, ये एंगल लेमडा है। ये देखो ये एंगल लेमडा है, ये एंगल, ठीक है ना बच्चों। ये एंगल भी लेमडा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। आपको पता है ऐसे अगर ये फोर्स होगा, यहां देखो, अगर ये फोर्स होगा यहां से ये एंगल लेमडा है, इस फोर्स के मैं कंपोनेंट्स करूंगा। यहां से जो इसका कंपोनेंट होगा वो होगा f cos लेमडा, यहां से जो होगा वो होगा f sin लेमडा। इसी तरह मैं यहां पर क्या काम करूंगा, इस mr ओमेगा स्क्वायर को मैं कंपोनेंट्स में ब्रेक करूंगा। यहां से इसका जो कंपोनेंट होगा वो होगा mr ओमेगा स्क्वायर cos लेमडा। ये क्वेश्चन बड़ा टफ है, समझा बहुत कम आता बच्चों को। यहां देखो तो मैं समझाऊंगा पूरा ही। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के मैंने कंपोनेंट्स किए। एक कंपोनेंट क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर cos लेमडा, ठीक है ना। दूसरा कंपोनेंट यहां से होगा, ये कंपोनेंट ये होगा mr ओमेगा स्क्वायर sin लेमडा। जो mr ओमेगा स्क्वायर cos लेमडा जो है दिस इज अपोजिट टू वेट। यहां देखो वेट इधर से है और mr ओमेगा स्क्वायर cos लेमडा इधर से है, लेकिन जो mr ओमेगा स्क्वायर sin लेमडा जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू mg।
है ना, ये mg है, देखो ये mg है, ये इसको क्या है परपेंडिकुलर, ये जो है ये इस वेट को क्या है अपोजिट। कौन अपोजिट है, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा अपोजिट है और एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा ये वेट पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो क्या मैंने यहां पर किया, बोलो मैंने क्या किया, शाबाश मुझे बताओ। मैंने एम आर ओमेगा स्क्वायर को रिजॉल्व किया, किन में, कंपोनेंट्स में। ठीक है ना, क्या किया इसको रिजॉल्व, किस में रिजॉल्व किया, कंपोनेंट्स में। बोल नहीं रहा हूं रिजॉल्विंग, मैं यहां लिखूंगा रिजॉल्विंग फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर विच इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू कंपोनेंट्स। देखो बच्चों, एक कंपोनेंट है एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा अपोजिट टू वेट mg ऑफ पार्टिकल, अपोजिट टू वेट mg ऑफ पार्टिकल। यहां देखो पार्टिकल की वेट इस साइड में है mg और एम आर ओमेगा स्क्वायर इस साइड में है, ये वेट पार्टिकल की वेट को अपोजिट है। ठीक है ना, दूसरा एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा परपेंडिकुलर टू वेट ऑफ पार्टिकल mg। जो एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा है ये वेट को परपेंडिकुलर है, पार्टिकल के वेट को परपेंडिकुलर है, लिहाजा इसको, इस फोर्स को पार्टिकल की वेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डज नॉट इफेक्ट वेट, ये वेट को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि इसको ये परपेंडिकुलर है। देखो अगर आपकी यहां पर एक बॉडी है, यहां देखो मेरी तरफ पहले समझो, यहां पर एक बॉडी है, इस साइड में इस बॉडी पे फोर्स एक्ट होता है 10 न्यूटन, ऊपर वाले साइड में इस बॉडी पे फोर्स होता है 6 न्यूटन। ये 6 न्यूटन जो है ये 10 न्यूटन को अपोजिट है। जो इस बॉडी पे नेट फोर्स एक्ट होगा वो होगा 10 माइनस 6। अरे नीचे कितना फोर्स है 10 न्यूटन, लेकिन 6 न्यूटन से कहां जा रहा है ऊपर। अब कितने न्यूटन फोर्स कूल रहे, अब कितना न्यूटन फोर्स रहा, अब जो फोर्स रहा वो रहा 10 माइनस 6। ओ भाई यहां देखो बॉडी नीचे की तरफ जा रही है विद 10 न्यूटन फोर्स, लेकिन इसको ऊपर कोई खींचता है विद 6 न्यूटन फोर्स। अब जो टोटल फोर्स नीचे की तरफ होगा वो होगा इस 10 में 6 न्यूटन को ये खत्म हो, 6 न्यूटन इसके साथ खत्म होंगे, तो वहां कुल न्यूटन कितने होंगे 4 न्यूटन। ठीक है ना, इसी तरह यहां पर क्या काम हुआ है, यहां पर क्या काम हुआ है, शाबाश, जो ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा है, कॉस लैम्डा ये वेट mg को अपोजिट है। ये किसको अपोजिट है, वेट mg को क्या है अपोजिट। अब जो एपरेंट वेट, नेट वेट पार्टिकल का इस पॉइंट पे होगा, पॉइंट P पे जो इसका नेट वेट होगा वो नेट वेट होगा mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, जैसे इधर बताया था। ठीक है ना, यहां बताया ना 10 माइनस 6, यहां mg नीचे है और एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा इसको अपोजिट है। तो वहां पर जो इस पार्टिकल का नया वेट होगा, क्योंकि इस वेट को ये फोर्स थोड़ा कम करेगा, तो नया जो वेट होगा वो होगा mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। उस वेट को हम कहते हैं एपरेंट वेट। क्या कहते हैं, मैं लिखूंगा फिर, देयरफॉर apparent weight of particle at point P, apparent weight of particle at point P। देखो उसको मैं apparent weight को ऐसे डिनोट करूंगा mg डैश या mg डैश या g लैम्डा, mg लैम्डा। ओरिजिनल वेट क्या था mg, जो apparent weight है उसको मैंने किससे डिनोट किया mg लैम्डा, लैम्डा मींस लैटिट्यूड। ठीक है ना, वो होगा बराबर ओरिजिनल वेट। व्हाट इज ओरिजिनल वेट mg माइनस क्या होगा इसको, शाबाश, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। ये है पार्टिकल का यहां पर एपरेंट वेट। चूंकि ओरिजिनल वेट को जो mg है इसको ये एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा थोड़ा कम करेगा क्योंकि ये इसको अपोजिट है। ठीक है ना, ये दो फोर्सेस अपोजिट फोर्सेस होंगे, जो नेट फोर्स होगा वो इनकी डिफरेंस होगा ना बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैंसलिंग एम थ्रू आउट, ये एम बी कैंसल, ये एम बी कैंसल, ये एम बी कैंसल। ठीक है, ये एम बी कैंसल है ना बच्चा। तो आपको निकला जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर, शाबाश, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा।
ठीक है, ठीक है ना। आपको निकला जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, मगर आर सुमार आर किसके बराबर है, आर कॉस लैम्डा, यहां लिखेंगे आर, ठीक है ना। ये बनेगा जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर कॉस लैम्डा इंटू ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा, ये बना यहां पर ओमेगा स्क्वायर इंटू कॉस लैम्डा। अब हम आगे जाएंगे, आगे देखेंगे क्या होगा, शाबाश। ये बनेगा जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस आर, तो आर ही रहेगा, आर, उसके बाद लिखूंगा मैं ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा, कॉस लैम्डा इंटू कॉस लैम्डा कितना हो गया शाबाश, कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा, कॉस स्क्वायर लैम्डा। जी लैम्डा निकला आपको बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। देखो बच्चों यहां देखो, 0 डिग्री यहां मैं लिखूंगा कॉस, ये लिखूंगा मैं थीटा, यहां लिखूंगा कॉस थीटा। एंगल लेंगे 0, जब थीटा कितना होगा 0, ये बनेगा कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, यहां देखो मेरे तरफ, जब थीटा 0 होगा तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है 1। उसके बाद थीटा लेंगे हम 30 डिग्री, ये होगा √3/2, वो होगा 1.73 डिवाइडेड बाय 2, वो होगा 0.8। उसके बाद 60 डिग्री, जब थीटा 60 होगा, थीटा 60 होगा, cos थीटा होगा 1/2, वो होगा 0.5। जब थीटा 90 होगा, यहां देखो cos थीटा होगा 0। इसका मतलब है जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, जो ये cos थीटा है इसका वैल्यू डिक्रीज होता है कि इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। जैसे हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, जो ये cos थीटा है इसका वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज। देखो यहां पर 7 इज इक्वल टू 4 - 3, अगर ये चीज कम हो जाएगा, ये चीज कम हो जाएगा, ये चीज कम हो जाएगा, इसका मतलब है ये चीज जो है बढ़ जाएगा, ये चीज बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह होगा ना, 7 जो होता है वो होता है 4 - 3। अगर मैं इसको 2 बनाऊंगा, 4 - 2 कितना हो गया यहां पर 6, ठीक है ना। इसका मतलब है आपको क्या लग रहा है, यहां पर जब ये लैम्डा जो है, जब लैम्डा इंक्रीज होगा, जब लैम्डा इंक्रीज होगा, लैम्डा इंक्रीज होगा, जो cos लैम्डा होगा, cos स्क्वायर लैम्डा होगा, ये कम हो जाएगा। जब ये कम हो जाएगा, जब ये कम हो जाएगा, इसका मतलब है जो g है, g से हम कम चीज जो है वो माइनस करते हैं, इसका मतलब है जो एक जी लैम्डा होगा ये इंक्रीज होगा। क्या यहां पर आपने देखा, एज लैम्डा इंक्रीजेस, यहां देखो जब लैम्डा इंक्रीज होगा, लैम्डा इंक्रीज होगा, आपने अभी देखा जितना हम एंगल को इंक्रीज करेंगे, जितना हम एंगल को इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो cos लैम्डा का वैल्यू जो होता है वो डिक्रीज होता है। जब ये डिक्रीज होगा, ये देखो यहां पर g है 9.8, यहां देखो मैं मारूंगा बाय गॉड 9.8, सपोज g का वैल्यू 10 है, पहले हम g को हम पहले 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे, हमें आंसर कितना आया यहां 4। अब हम इसको कम करेंगे, g को मैंने 5 माइनस किया, यहां पर क्या आएगा 5, g को मैंने 3 माइनस किया, यहां पर क्या आएगा आपको 7। इसका मतलब है जितना ये क्वांटिटी कम होगी उतना ये क्वांटिटी ज्यादा होगी। यहां पर देखो एज लैम्डा इंक्रीजेस, एज लैम्डा इंक्रीजेस, अगर यहां पर लैम्डा जो है एज लैम्डा इंक्रीजेस, आपका cos स्क्वायर लैम्डा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा डिक्रीज। Therefore आपका ये g लैम्डा होगा, g लैम्डा जो आपका होगा वो इंक्रीज होगा। आई एक्सप्लेन यू कि एज लैम्डा इंक्रीजेस, cos स्क्वायर लैम्डा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा और आपका जो g लैम्डा होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हम देखेंगे पोल्स पे, इक्वेटर पे कितना होगा ये, एट इक्वेटर, यहां देखो एट इक्वेटर लैम्डा जो होता है, लैम्डा वो 0 के बराबर होता है, क्योंकि इक्वेटर पे आपका लैटिट्यूड जो होता है, लैटिट्यूड आज ही पढ़ाया, इक्वेटर पे आपका लैटिट्यूड जो होता है वो कितना डिग्री होता है, वो कितना डिग्री होता है भाई, इक्वेटर पे ले लो ना इसको, कितना होता है 0 डिग्री। तो एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल 0, तो ये निकलाएंगे जी लैम्डा, यहां लैम्डा के बदले लिखेंगे जी इक्वेटर, दिस इज जी इक्वेटर, ठीक है। एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल टू 0, मैं इस इक्वेशन में निकालूंगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर एंड देन एट द पोल्स।
जब लेमडा 0 है उस वक्त जी लेमडा बराबर है जीई, वो होगा बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री। चूंकि cos 0 जो है वो है 1, तो मुझे जी ई निकलेगा बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, क्योंकि cos 0 1 है, ऊपर स्क्वायर है, तो आपका जो जी ई है वो निकला जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ये निकला आपको वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। कहां निकला? इक्वेटर पे। यानी आपको जी में से क्या काटना है? आर ओमेगा स्क्वायर, तब आपको निकलेगा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द इक्वेटर। ठीक है ना? अब हम सेकेंडली जाएंगे एट पोल्स। अब हम देखेंगे यहां पर एट पोल्स। देखो यहां पर एट पोल्स जो आपका लैटिट्यूड लैम्डा होता है वो होता है 90 डिग्री। पोल्स पे जो लैम्डा होगा वो कितना होगा? 90 लैटिट्यूड। तो जी लैम्डा के बदले में लिखूंगा जीपी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स। ठीक है ना? ये निकलेगा जीपी इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। मगर आपको पता है cos 90 जो है वो है 0। cos 90 कितना है? 0। जब cos 90 0 है तो ये वाला चीज जो है ये 0 बनेगा। इसका मतलब है आपका जीपी जो है वो जी के बराबर निकला, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स जो है वो निकला आपको बराबर जी के बराबर। जी मींस बराबर 9.8 निकला। इसका मतलब है इक्वेटर पे हमने 9.8 को ये वाला चीज माइनस किया, तब हमें निकला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। मगर पोल्स पे आपको सीधे निकला है किसके बराबर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस। इसका मतलब है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो है मैक्सिमम एट द पोल्स एंड मिनिमम एट द इक्वेटर। मिनिमम एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे कितना है? शाबाश, G इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। मगर पोल्स पे किसके बराबर है? G। ठीक है ना? इन दो वैल्यूज का हम डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, यानी जीपी माइनस जीई। वो डिफरेंस देखेंगे कितना होगा, वो देखेंगे जीपी माइनस जीई, जीपी माइनस जीई, जीपी माइनस जीई। बोलो जीपी किसके बराबर है? जीपी किसके बराबर है? जी वो है जी माइनस करेंगे इसको जीई, वो है माइनस टाइम्स जी आर ओमेगा स्क्वायर। यहां देखो ये निकलेगा जीपी माइनस जीई इज इक्वल टू जी, फिर आएगा माइनस जी, माइनस माइनस होगा प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, प्लस जी माइनस जी खत्म। इसका मतलब है जीपी माइनस जीई जो है वो निकला आर ओमेगा स्क्वायर। यानी डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पोल्स and at the equator, difference between acceleration due to gravity at the poles and at the equator, वो difference किसके बराबर निकली? R omega square. What is R? Radius of Earth. What is omega? Angular velocity of Earth. This completes this question.